السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ فرسٹ ٹرم ساول ایگزام پیپر کوشچن آنسر 11th اکنامکس 50 مارکس اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے معاشیات کے تعلق سے بیانات۔ اس کا صحیح جواب ہے چار کا اے بی سی اور ڈی۔ معاشیات سماجی سائنس ہے۔ معاشیات کا لفظ یونانی لفظ اکنومیا سے ماخوذ ہے۔ معاشیات انسان کے معاشی رویہ اور سلوک سے مربوط ہے۔ معاشیات ایک خاندان کی انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرا ہے دیے ہوئے اعداد میں D7 اعداد 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو اس کے متبادل میں صحیح جواب ہے تیسرا یعنی 10۔ اقدار کی تقسیم سے تعلق رکھنے والا صحیح جملہ۔ اس کا صحیح جواب ہے اے پرسنٹائل صدویہ کی 100% حصوں میں بالکل تقسیم 99 پوائنٹ نقاط فراہم کرتے ہیں۔ سی کوارٹائل ربعی کو Q1 Q2 اور Q3 سے ظاہر کرتے ہیں۔ ڈی پرسنٹائل صدویہ اور ڈیسائل تعشیر کو علامتی طور پر P اور D سے ظاہر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے غیر متعلق بیان الگ کیجیے۔ معاشیات کی تعریفیں، اس کا صحیح جواب ہے افلاطون۔ دوسرا ہے خواہشات، اس کا صحیح جواب ہے لامحدود۔ دوسرا ہے ریاست مہاراشٹر کے تاریخی مقامات، اس میں سے جو غلط لفظ ہے وہ ہے میسور، یہ کرناٹک میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مہاراشٹر میں امداد باہمی تحریکیں، یہ اس کا غلط جواب ہے لوہے اور فولاد کی صنعت، یعنی یہ اس کا غلط جوڑی ہے، غلط۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے درج ذیل مناسبت کو مکمل کیجیے۔ قدرتی سائنس خطی سائنس، سماجی سائنس خیالی تصوراتی، طبیعت قدرتی سائنس، نفسیات سماجی سائنس۔ علاقائی فلم کولہا پور، بالی ووڈ فلم ممبئی، صحت عامہ NRHM، ذیلی ضلع اسپتال ضلعی اسپتال، پرائمری تعلیم ثانوی تعلیم، تعلیم اعلیٰ تعلیم۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے درج ذیل بیانات کے لیے معاشی اصطلاح دیجیے۔ افادیت کی بربادی کرنا صرف، افادیت کی تخلیق کرنا پیداوار، معاشی سرگرمیوں کی پیمائش کرنا قومی آمدنی۔ اگلا سوال ایک مقام سے دوسرے مقام کو آب و ہوا کی تبدیلی یا لطف اور عیش کے لیے سفر کرنا سیاحت، کسانوں کے بینک کے ذریعے کھیتی کے روزگار فراہم کرنا زرعی امداد باہمی بینک۔ پانچواں نئی تکنیک اور انسانی وسائل کی مہارت کے تخلیق کے لیے تعلیم فراہم کرنا اعلیٰ تعلیم۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے دیے گئے بیانات سے نظریات کو شناخت کر کے اس کی وضاحت کیجیے۔ میرے والد نے 2 چاک کی سواری خریدی جو میرے سفر کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت انفرادی حاجیت۔ نظریے کی وضاحت ہے انفرادی سطح پر پوری کی جانے والی حاجت کو انفرادی حاجت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ببن راؤ اپنی رقم قومی بینک میں رکھتا ہے، اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت بینک زر۔ نظریے کی وضاحت ہے بینک زر مطلب ایک شخص کا اپنی رقم کا بینک میں امانت کے طور پر رکھنا اور اس کے بدلے بینک سے چیک بک لینا۔ تیسرا ہے چارو اپنے چھوٹے بھائی کی شرٹ کو خریدنے کے لیے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرتی ہے، اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت پلاسٹک زر۔ نظریے کی وضاحت ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ جدید زر ہے جو جدید تکنیک کے ذریعے لین دین کا ذریعہ ہے۔ چوتھا ہے اوسط سے پیش کی گئی اقدار کی غلط وضاحت ہو سکتی ہے، اس کا جواب ہے جی نہیں۔ میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں کیونکہ اعداد کو اترتی یا چڑھتی ترتیب میں یہ کم از کم حد کی ترتیب دینے سے اقدار کے 2 مختلف نتیجے سامنے آتے ہیں۔ ایسے غلط تشریحات کے لیے اور صحیح حل کے لیے اوسط کا استعمال کرتے ہیں جس سے غلطی کے امکانات نہیں ہوتے۔ پانچواں ہے وسطانیہ کو دوسرا کوارٹائل سے بھی جانتے ہیں، یہ جی ہاں۔ میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ دوسرا کوارٹائل سیریز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ سیریز کو اترتی یا چڑھتی ترتیب میں لگا دیا جائے کیونکہ دوسرا کوارٹائل بھی درمیانی نقطہ ہوتا ہے اور وسطانیہ بھی، اس کے لیے وسطانیہ کو دوسرا کوارٹائل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے فرق لکھیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات، اس کا جواب ہے جزوی معاشیات معاشیات کا انفرادی سطح پر مطالعہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے، کلی معاشیات معاشیات کا کلی سطح پر مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے انفرادی آمدنی انفرادی پیداوار کی قیمت بازار کی ساخت وغیرہ، کل مانگ کل رسد کل درآمد برآمد وغیرہ۔ عدل بدل نظام معیشت اور زر کی معیشت،
अदल बदल निज़ाम मईशत मतलब जहाँ अशिया से अशिया का लेन देन होता है, मसलन अनाज के बदले कपड़े का लेन देन। ज़र की मईशत में ज़र के ज़रिए लेन देन होता है, मतलब 1 क्विंटल चावल 4,000 रुपये का होगा। क्वार्टाइल और परसेंटाइल, आदत को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना क्वार्टाइल कहलाता है। n+1/4, आदत को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करना परसेंटाइल कहलाता है। n+1/100। माशी बुनियादी सहूलियात और समाजी बुनियादी सहूलियात। मुआशी बुनियादी सहूलियात मतलब वो सहूलियात जो पैदावार और तकसीम सहूलियात फराहम करते हैं। समाजी बुनियादी सहूलियात मतलब वो सहूलियात जो समाज के लोगों के मियार को बुलंद करने में सहूलत फराहम करते हैं। बिजली, नक़्ल व हमल, रसल व रसायल वगैरह इसकी मिसालें हैं। तालीम, सेहत की खिदमत, तफरीह खिदमत वगैरह इसकी मिसालें हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। दौलत की खुसूसियात बयान कीजिए। इसका जवाब है दौलत मतलब ऐसी अशिया जिनकी बाज़ारी कदर हो या जिन अशिया का ज़र के तवस्सुत से तबद्दुल मुमकिन हो, दौलत कहलाती है। वो तमाम अशिया जो दौलत कहलाती है, इनकी दर्ज झैल खुसूसियात हैं। अफादियत, इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत जो किसी शय में मौजूद होती है, अफादियत कहलाती है। मसलन फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर वगैरह। दूसरा है खिल्लत, ऐसी तमाम अशिया जिनकी मांग की मुनासिबत से रसद कम हो, इसे खिल्लत कहते हैं। और किसी भी शय को दौलत कहलाने के लिए खिल्लत का होना ज़रूरी है। मसलन ऐसी तमाम अशिया जिनकी अहमियत हम कीमत अदा करते हैं, दौलत कहलाती है। तीसरा है तबद्दुल, अशिया का एक शख्स से दूसरे शख्स को या एक मकाम से दूसरे मकाम को बदलना तबद्दुल कहलाता है। अगर अशिया मादी शक्ल में हों तो ये मुमकिन है कि इनका मकाम बदल सकता है, मिसाल के तौर पर सवारियाँ, जवाहरात वगैरह। चौथा है खारजियत, इंसान के बाहर की चीज़ों को ही हम एक शख्स से दूसरे शख्स को बदल सकते हैं, मसलन बैग और कुर्सियाँ वगैरह। दूसरा है महाराष्ट्र में इमदाद बाहमी तहरीकों को बयान कीजिए। इसका जवाब है महाराष्ट्र में इमदाद बाहमी तहरीकें, हुकूमत महाराष्ट्र ने इमदाद बाहमी तहरीक के ज़रिए हमारे मुल्क में बहुत अहम किरदार अदा किया है। देहातों की मुआशी तरक्की और महाराष्ट्र में पिछड़े हुए तबकों की समाजी व मुआशी सुधार के लिए इमदाद बाहमी तहरीक एक मौसर आले के तौर पर काम कर रही है। इमदाद बाहमी सोसाइटियों की बुनियादी नोयत अपने मदद आप, जमहूरियत, मसावत और इस्तेहकाम जैसी ख़दरों की हौसला अफजाई है। महाराष्ट्र में इमदाद बाहमी तहरीक ख़ास तौर पर ज़राअती क़र्ज़ में और इसके साथ दीगर शोबों में जैसे ज़रई अशिया पर अमल, ज़रई बाज़ार कारी, शुक्र इमदाद बाहमी, मछलियों की इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ, दूध की इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ, कपड़ों की सनत, घरेलू सोसाइटियाँ सारिफ के ज़ख़ीरे में ख़ास काम कर रही हैं। 31 मार्च 2017 तक पूरी रियासत में 1,95,000 इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ हैं, जिनके तकरीबन 5.25 लाख मेंबर हैं। पाँचवा है काला पैसा नज़रिए की वजाहत कीजिए। स्याह ज़र नज़रिए की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है काला पैसा मतलब ऐसा ज़र जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो और ना ही जिस पर हुकूमत कोई टैक्स अदा किया गया हो। काला पैसा टैक्स की चोरी का पैसा होता है। यह क़ानूनी और गैर क़ानूनी दोनों तरीक़ों से हासिल किया हुआ कमाया हुआ रुपया होता है। काला पैसा रिश्वतखोरी, डाका, काला बाजारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह की हौसला अफजाई करता है, जो मुआशी तरक्की में रुकावट पैदा करती है। बहुत से ममालिक का काला पैसा कंट्रोल करने के लिए गैर ज़र की मईशत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, दिए गए बयान से आप मुत्तफ़िक़ है या नहीं, वजह बताइए। पहला है तमाम ख्वाहिशात एक ही वक्त में पूरी हो जाती है। जी नहीं, मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती है और उनको पूरा करने के ज़राए महदूद होते हैं। दूसरा, लामहदूद ख्वाहिशात को तरजीहात के लिहाज से पूरा किया जाता है। तीसरा, मसलन एक शख्स 100 रुपये से नाश्ता भी करना चाहता है और सिनेमा भी देखना चाहता है, मगर वो एक वक्त में एक ही हाजत पूरी कर सकता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 100 रुपये हैं। दूसरा है आज के जदीद ज़र में कई बेहतरीन खूबियाँ पाई जाती है। इसका जवाब है जी हाँ, मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि ये ज़र 100% कबूलियत यानी आम कबूलियत रखता है। ये ज़र छोटी इकाइयों में आसानी से तकसीम किया जाता है। आज के ज़र में पायदारियत है, यानी ये ज़्यादा दिनों तक क़ायम रहता है। आज का ज़र बहुत आसानी से पहचान लिया जाता है और हर कोई इससे आगाह है। पाँचवा नुक्ता है आज के ज़र में आसान मुंतकली है,
यानी ये एक मकाम से दूसरे मकाम को आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। छठा है, एक ही कदर के तमाम सिक्के व नोट एक ही जैसे होते हैं। सातवां, आज के ज़र में इस्तेकाम भी है। इस तरह जदीद ज़र में बहुत सी खूबियाँ हैं। दूसरा है, महाराष्ट्र में मौशी बुनियादी सहूलियात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़राहम की गई। इसका जवाब है जी हाँ, मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि पहला नुक्ता है तवानाई के ज़राए और उनकी क़िस्तें बढ़ाई गई है। दूसरा, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल के लिए देहातों में बिजली पहुँचाना, नेटवर्क में सुधार लाना वगैरह। तीसरा है, रियासत के LPG इस्तेमाल करने वालों को बराह रास्त मुंतक़ली को जदीद बनाना। चौथा है, 2001 से 2021 का सड़क सुधार मंसूबा नाफिज किया गया और 3,37,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर करना तय किया गया। मुंबई और नागपुर के दरमियान मेट्रो रेलवे शुरू की गई। बंदरगाहों की बाहमी तरक्की के लिए महाराष्ट्र बंदरगाह तरक्की पॉलिसी कायम की गई और सागरमाला प्रोग्राम शुरू किया गया। सातवां, 30 सितंबर 2017 तक महाराष्ट्र में नेट के इस्तेमाल करने वाले बुनियादी अफराद 5,45,00,000, जो तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा हैं। सवाल नंबर 5 है, ज़ैल का पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। पहला है, हुकूमत हिंद ने भारत नेट प्रोग्राम हिंदुस्तानी देहातों के लिए आज के जदीद दौर को जहन में रखकर शुरू किया। 1 लाख से ज़्यादा दीही इलाके आज भारत नेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड स्कीम से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली पहली रियासत है। मशरक़ी यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड वगैरह रियासतें भी इन प्रोग्रामों में पहले दौर में बेहतरीन काम कर रही हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने भारत नेट प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया? इसका जवाब है, तमाम दीही इलाकों को इंटरनेट की सहूलियत फराहम करने के लिए हिंदुस्तान ने भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू किया। दूसरा, कितनी ग्राम पंचायत इंटरनेट की खिदमत हासिल कर रही हैं? इसका जवाब है, 1 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत इंटरनेट की खिदमत हासिल कर रही हैं। तीसरा है, कौन सी रियासतें भारत नेट में बेहतरीन कारकर्दगी में पहले दौर में आगे हैं? इसका जवाब है, महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड रियासतें भारत नेट की बेहतरीन कारकर्दगी में पहले दौर में आगे है। चौथा, इंटरनेट ने दुनिया को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। इस पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। इसका जवाब है, मालूमात के तबादले में पूरी दुनिया में इंटरनेट सबसे अहम रोल अदा कर रहा है। ये तिजारत की तरक्की, तबादले ख्याल, सकाफ़त को फैलाना वगैरह की तरक्की में भी अहम रोल अदा करता है। इस तरह इंटरनेट ने दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है। दूसरा पैराग्राफ है, दर्ज झैल पैराग्राफ का मुताला करके दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। हमारी हुकूमती इंतज़ामिया की शदीद ख्वाहिश है कि देहात तरक्की करें। महात्मा गांधी ने सही कहा है कि हिंदुस्तान देहातों में सांस लेता है और कोई भी कौम बग़ैर देहाती तरक्की के मुआशी तरक्की नहीं कर सकती। ये वक्त की ज़रूरत है कि तमाम ईजादात और तब्दीलियों को देहातों की बुनियादी तरक्की के लिए मौसर हुकूमती पॉलिसी के ज़रिए देहात की सतह तक पहुँचाया जाए। मिसाली गाँव पॉलिसी की कामयाबी से बेहतरीन सबक लेकर पॉलिसी के लिए इसने पंचायत राज को मुस्तहकम तरीक़े से लागू किया। अगरचे हिंदुस्तान सही सिमत में, जैसे गैर मसावी तालीम में कमी और ख़वानदगी की शरह में इजाफ़ा वगैरह में तरक्की कर ली है, मगर फिर भी बहुत से मकासद आज भी हासिल करना बाकी है। समाजी मुतग़य्यरात सही और मौसर पॉलिसी बनाने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद मुख्तार इदारे, यहाँ तक कि मुल्क की बहुत ही छोटे इदारों को भी मुख्तलिफ फ़ैसला करने में हिस्सेदार बनाने की यकीन दहानी कराई जा रही है। अगला है, देहातों की तरक्की पर महात्मा गांधी के ख्यालात बयान कीजिए। इसका जवाब है, महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान देहातों में सांस लेता है। इसकी राय है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए देहातों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है और बग़ैर देहात की तरक्की के लिए कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। दूसरा है, दीही तरक्की में हुकूमती किरदार पर रोशनी डालिए। इसका जवाब है, देहातों की तरक्की के लिए हुकूमत गैर मरकज़ियत की पॉलिसी पर अमल कर रही है और इसके लिए पंचायती राज निज़ाम को मजबूत बना रही है। तीसरा है, दीही तरक्की हासिल करने के लिए कौन से तरीक़े बताए गए हैं? इसका जवाब है, पंचायत राज के ज़रिए कौमी और रियासती इख्तियारात की गैर मरकज़ियत करके ख़ुद मुख्तार इदारों को मजबूत बनाना, ताकि इनकी रहनुमाई में देहात तरक्की हासिल कर सके। चौथा सवाल है, मिसाली गाँव पर आपका ख्याल पेश कीजिए। इसका जवाब है, मेरे ख्याल के मुताबिक एक मिसाली गाँव इसी वक्त हो सकता है जब वहाँ के लोग बेहतरीन तालीम याफ्ता हों, हर शख्स बारोज़गार हो और तमाम लोग एक बेहतरीन मेयार ज़िंदगी गुजार रहे हों। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।